Hi students, today I'll tell you about carbon registers. Before start of carbon register, now you look at by seeing the board, there are so many things that are already written here. Sometimes you may be surprised at what is going on today. But don't worry, this is a shortcut method to remember this table also. I'll tell you that also. Uh, First, let me briefly tell about what is carbon register. Naturally, it is a resistor, so it offers resistance. There is nothing new about that one. But what is happening in our daily life in any electronic circuit, if you find there is a carbon resistor, and always what is the function of resistor actually? The resistor controls the current. Because your certain electronic devices are very much sensitive device. If somehow or some way, if large current is passing through your electronic device, what will happen? The large current will create a lot of amount of heat, and finally, uh, large current will what will happen? The large current will produce lot of amount of heat, and your sensitive device will burn actually. So for safety of those devices, we need a particular resistance that should connected in the circuit. The resistance will control the current. The controlled current is allowed to pass through. Now you come here. Before carbon resistor, commercially there are two types of resistor. One is carbon resistor. No doubt we will deal it in detail. But another is wire bound resistor. So see there, this is wire bound resistor. Wire bound resistor. So there is an example of wire bound resistor in our lab also. You see there, this is your board actually. Sorry, this is the rheostat. And rheostat is an example of wire bound resistor. There are a thin wire. It is made up of normally alloy. It is not, and this alloy is wounded over the cylindrical non-insulating frame. Thousands of turns are there. There's a very thin wire. Thousands of turns are wounded over this one, and this is a controller actually, and this control can vary the resistance actually. So this is an example of variable resistance. So whatever resistance you want, you can slide this one slider jockey. It is called normally. This jockey you can slide, and you can control the current. But this is an example of wire bond resistor. Now you write on about wire bond resistor. What is happening? The wire bond resistor is made up of nichrome, manganese, or constantine. Manganese or constantine. Constantine. Okay. So the, these alloy frames your wire bond resistor. Now, one beautiful thing is happening with the alloy is that alloy is basically insensitive to the temperature. So this line, please, you write down. The alloys are basically insensitive to the temperature. That means what? If you raise a little bit temperature, their resistivity is almost same. The variation of resistivity is very less. So that is why we are framing one sentence that the alloy is insensitive to the temperature. This line you note down. Alloy is insensitive to the temperature. In what respect it is insensitive? The resistivity of an alloy varies very less, negligibly small, almost same. So that is one beautiful thing of alloy. That that is good thing. But the problem is what? If you want to construct a high value of resistance, you need a very lengthy. That means the length of the wire is very high, and due to that, its shape and size becomes very large shape of resistance you'll get. If you want to create one high resistor, you need a wire of huge length. Okay, at this huge length, the shape of this resistor will be large. तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप वायर बॉन्ड रेजिस्टर यूज करते हो,
देखो खूबी हमने बता दिया, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग इज व्हाट, इट इज इनसेंसिटिव टू द टेम्परेचर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इफ यू वांट टू क्रिएट वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस तो आपको बहुत लंबा वायर लेना पड़ेगा, फिर उसको आप वैसे ही उंड करो, लपेटो, फिर वो क्या हो जाएगा ना, उसका शेप बड़ा हो जाएगा। तो तीन चीज आप देखो, हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए प्रॉब्लम क्या क्या आया, एक तो बहुत लंबा वायर हुआ, दूसरा उसका शेप बड़ा हो गया, और तीसरा जो उससे भी इम्पोर्टेंट है कि आपका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर इज टू मच हाई। तो तीनों प्रॉब्लम है। और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो भी होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, वो कॉम्पैक्ट होता है। मान लो आपके मोबाइल में लगा या रेडियो सेट में लगा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और उसमें हमने वायर बॉन्ड रेजिस्टेंस यूज किया है टू कंट्रोल द करंट। अब समझो इतना बड़ा रेजिस्टेंस हमने इसमें यूज कर दिया, ठीक है। और देखो ये 295 ओम का रेजिस्टेंस है इसमें, ओनली 295। तो 295 ओम का रेजिस्टेंस इतना, मान लो कि आपको थाउजेंड्स ऑफ ओम यूज करना है, तो कितना बड़ा होगा आप इमेजिन करो। तो ये मोबाइल के अंदर अगर ये रहता, तो इमेजिन करो कि आपका मोबाइल इतना बड़ा डब्बा जैसा हो जाता। तो इसलिए इसकी प्रॉब्लम क्या क्या है, पहला प्रॉब्लम लिखें, फॉर क्रिएटिंग हाई रेजिस्टेंस, तीन पॉइंट आप नोट करेंगे। द लेंथ ऑफ वायर इज वेरी हाई, सॉरी वेरी लॉन्ग, पहला प्रॉब्लम। लेंथ ऑफ वायर इज वेरी लार्ज, पहला, फॉर हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा, यू हैव टू उंड ओवर दैट वन, so shape is large। और तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि इट इज कॉस्टली, एक्सपेंडिचर इज हाई। Okay, so all three problems are there. That's why it is not wire bond resistance, normally not used in electronic circuit. तो फिर कौन सा उसके सब्सटीट्यूट में काम वही कर दे, और सारा जो इसका प्रॉब्लम है वो अगर इसको ख़त्म कर दे, तो उससे बढ़िया रजिस्टर और कौन, तो वो कौन है, इट इज ए कार्बन रजिस्टर। कार्बन रजिस्टर जो है वो उसका साइज छोटा होता है, बहुत कम उसकी लागत होती है, और कार्बन रजिस्टर की खूबी है कि फ्यू ओम्स टू मिलियंस ऑफ ओम आप बना सकते हो बहुत आसानी से, कि रेंजेज बहुत ज़्यादा, the few ohm to millions of ohm that you can create here. Okay, तो अब आओ कार्बन रजिस्टर, you write down few lines of carbon register. A carbon register is the mixture of three things you have to remember. A carbon register is a mixture of carbon black, clay and resin. What is that? पहला, mixture of carbon black, उसके बाद क्ले, उसके बाद रेजिन। A carbon resistor is a mixture of three things, that is carbon black, clay and resin. अब इसको क्या कहते हैं, it is highly pressed and heated to form in a cylindrical shape. It is highly pressed, बहुत प्रेशर डाला जाता है, इट इज हाईली प्रेस्ड एंड हीटेड टू फॉर्म इन cylindrical shape. Okay, then it is जैकेट आप पहने हो ना, जैकेटेड बाय आइदर बाय प्लास्टिक और सिरामिक। तो पहला क्या करना, तीन मिक्स लेना, क्या क्या, एक होता है कार्बन ब्लैक, दूसरा क्ले, तीसरा रेजिन। तीनों को हीट करके सॉलिडिफाई किया जाता है, एक रूप में लाया जाता है, कौन से शेप में, सिलिंड्रिकल शेप में। और फिर उसको जैकेटेड या कवर्ड भी आप बोल सकते हो, इट इज कवर्ड विथ प्लास्टिक और सिरामिक, ठीक है। तो ये इट इज जैकेटेड बाय दो चीज लिखना,
क्या लिखना, प्लास्टिक और सिरामिक, प्लास्टिक और सेरामिक, ceramic, plastic or ceramic. It is decorated by plastic or ceramic. Now your carbon register is ready. The carbon register is, it is basically mixture of what? It is a carbon black. Number two is your clay. Number three is resin. Resin एक binder का काम करता है, मतलब बांध के रखता है. And it is highly heated at high pressure. Then it is made in the shape of cylinder, and it is finally covered with the two material, normally plastic or सिरामिक. अब देखो, ये तो हुआ कार्बन रजिस्टर बनाने का. कार्बन रजिस्टर को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज करते हैं टू कंट्रोल द करंट. रजिस्टर का काम ही है कंट्रोल द करंट, तो करंट को आपको कंट्रोल कर देगा. अब देखो आगे कि ये जो कार्बन रजिस्टर होता है उसमें 4 रिंग होता है ऊपर में, लाल पीला हरा डिफरेंट कलर का. तो उस कलर को देख के हम उसका रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं. इसलिए इसका नाम ही पड़ा है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर. मतलब कलर कोड किया जाता है. तो कार्बन रजिस्टर में कितने रिंग होते हैं? 4 रिंग्स. नॉर्मली कभी कभी 3 रिंग ही मिलेगा. तो 3 रिंग मिलेगा तब क्या करना है, 4 रिंग मिलेगा तो क्या करना है, दोनों ऑप्शन मिलेगा. तो कार्बन रजिस्टर में 4 रिंग्स होता है, ऑल 4 कलर रिंग्स. द कलर ऑफ दैट विल डिसाइड द रेजिस्टेंस. ठीक है. अब हमारे कलर की एक सीरीज हमने टेबल बनाया. तो कलर का टेबल बनाने के लिए आप एक सेंटेंस ध्यान करो, तो उससे आपको वैसे बहुत ये सेंटेंस का कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन आपका कलर का सीक्वेंस पता कर देगा. कौन कौन, ये सेंटेंस पहले आप देखो ताकि ये आपका सीक्वेंस पता चल जाए. बी रॉय, बी रॉय, द नेम यू कैन से ऑफ Great Britain. B.B. Roy of Great Britain having very good wife, wearing yeah, having ज़्यादा बढ़िया नहीं, having gold and silver necklace. Okay, having gold and silver necklace. Now you see here सेंटेंस आप ध्यान से देखो ये फिजिक्स नहीं है, ये याद करने का एक सेंटेंस है. बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ हैविंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस. ठीक है, ये एक तरह का सेंटेंस है. अब जिस फॉर्म में आपको याद रखना याद कर लेंगे, या वियरिंग भी लिख सकते हो, वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस. ठीक है. अब देखो इसमें क्या है ना कि जितने अल्फाबेट कैपिटल में लिखा हुआ है वो कलर का है. जैसे BROY, तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे ब्लैक, फिर ब्राउन, फिर रेड, फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर यहाँ पे भी पे आ जाए वायलेट, फिर तुम्हारा ग्रे, फिर वाइट, फिर गोल्ड, सिल्वर और नो कलर. फिर से आप देखिए सेंटेंस को, जितने भी कलर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो ये याद रखना, BB रॉय ग्रेट ब्रिटेन, इससे ग्रेट नॉट ग्रेट ब्रिटेन, BB Roy of Great Britain having very good wife and having wearing gold and silver necklace. सेंटेंस याद आप दिमाग में सेट करें कि इस सीक्वेंस में हमारा कलर होगा. देखो, B for black, then brown,
then red, then orange, then yellow, then green, then your blue, then violet, then gray, then white, finally gold, silver, and for no ring, no fourth band यहाँ पे दिए हुए, ठीक है, एंड फॉर नो ऑप्शन है। ओके, अब इसको सीक्वेंस में याद करने से क्या फायदा हुआ, तो कार्बन रजिस्टर में कितने कलर रिंग होते, चार, नॉर्मली चार होते, कभी कभी तीन भी होते। तो चार में जो पहला दो रिंग का जो कलर होगा वो तुमको सिग्निफिकेंट फिगर देगा। तो द कलर ऑफ फर्स्ट टू रिंग गिव्स यू सिग्निफिकेंट फिगर, द कलर ऑफ थर्ड रिंग विल गिव यू मल्टीप्लायर। तो उसको मल्टीप्लाई करना, 10 का पावर 0, 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, 10 का पावर 3, ऐसे करके 9 तक है। फिर ये जो पार्ट है लास्ट में जिसमें गोल्ड, सिल्वर और नो फोर्थ बैंड लिखे हैं, ये पार्ट सिर्फ टॉलरेंस को बताता है। तो टॉलरेंस का मतलब हुआ कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस एक्चुअली, ठीक है। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस, कि कितना वो टॉलरेट कर सकता है, कितना वो वैरी कर सकता है। अब चलो, तो इसको हम लिखें कि ए कार्बन रजिस्टर हैज 4 कलर्ड रिंग्स। लिख डालो, ए कार्बन रजिस्टर हैज 4 कलर्ड रिंग्स। कितने कलर रिंग होते हैं, 4 कलर रिंग्स। द कलर ऑफ फर्स्ट टू रिंग, द कलर ऑफ फर्स्ट टू रिंग्स gives significant figure. Okay, then you write down the color of third ring gives multiplier. Okay, I hope that you will note down that one. तो पहला दो रिंग का जो कलर है वो क्या देता है हमको, द कलर ऑफ फर्स्ट टू रिंग विल गिव यू सिग्निफिकेंट फिगर, द कलर ऑफ थर्ड रिंग विल गिव यू योर मल्टीप्लायर, एंड लास्ट में आप लिखो द कलर ऑफ फोर्थ रिंग विल गिव यू व्हाट, द कलर ऑफ फोर्थ रिंग विल गिव यू फोर्थ रिंग आपको देगा टॉलरेंस। यानी अब देखो, मान लो कि हमारे पास एक कार्बन रजिस्टर है, ठीक है, इसमें तुम्हारा एक रिंग ये, दूसरा रिंग ये, तीसरा रिंग ये, चौथा रिंग ये, ठीक है। ये रिंग का जो कलर है वो हम लिख देते हैं, दिस इज योर ग्रे, this is your orange, second, third one is your blue, and this one is gold, ठीक है, ये गोल्डन कलर है। तो पहला है ग्रे, दूसरा है ऑरेंज, तीसरा है ब्लू, चौथा है गोल्ड। तो इस टेबल से, ये जो टेबल इतना बड़ा हम लोग ड्रॉ किए थे, इस टेबल से पता चल जाएगा आपको। तो पहला दो रिंग देखो, ग्रे एंड ऑरेंज। तो ग्रे का नंबरिंग कितना है 8, ऑरेंज का नंबरिंग कितना 3, तो आपने लिखना 83। तो दो रिंग का काम हो गया आपका। पहला है ग्रे, दूसरा है ऑरेंज। तो ग्रे की जगह, ग्रे का जो सीक्वेंस है 8वां है, तो 8वां क्या 9वां होगा, 0 से स्टार्ट है ना, 0 से स्टार्ट है, तो ये 9वां सीक्वेंस है, तो 9वां सीक्वेंस में 8वां ये नंबर है। और ग्रे का है 8 और ऑरेंज का है 3, तो 83 इनटू तीसरा रिंग का कलर है ब्लू। कहाँ है ब्लू तुम्हारा, ब्लू ये, तो यहां पे लिखना 10 टू द पावर 6। ये हुआ इसका रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपके दो जो रिंग का कलर था उससे हम सिग्निफिकेंट फिगर निकाले 83, और तीसरा जो रिंग है जिसका कलर है उससे हम क्या निकाले, उस रिंग के
कलर से हम निकाले मल्टीप्लाई, दैट इज 10⁶। अब लिखो टॉलरेंस, तो यहां लिखना प्लस माइनस। तो फोर्थ रिंग जो है वो गोल्ड कलर का है, तो यहां पे लिख देना प्लस माइनस 5%, यानी 5% का वेरिएशन हो सकता है। ठीक है, तो ये हुआ कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। अब आप देखें, मान लो हमसे कोई पूछे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इसको आप पहले आप खुद ही करना तब फिर मिलाना। है क्या क्वेश्चन में कि सपोज करो कि ये कार्बन रजिस्टर का रेजिस्टेंस है 27 किलो ओम, ठीक है, 27 किलो। तो आपसे क्वेश्चन उल्टा पूछ सकता है कि उस कार्बन रजिस्टर के रिंग का कलर बताएं। तो टेबल ध्यान है तो बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो 27, तो 2 है रेड का और 7 है वायलेट का, तो पहला रिंग होगा रेड, दूसरा होगा वायलेट, और किलो, तो किलो का मतलब होता है 10⁻3। तो 10⁻3 आप देख लें, 10⁻3 कौन है? ऑरेंज, तो यहां पे लिख देना ऑरेंज। और चूंकि इसमें कोई चीज नहीं दिया हुआ है चौथा रिंग के बारे में, तो बस आप चौथा रिंग के बारे में कुछ बोलना है, तो प्लस माइनस लिखना था 20% या 10% या जो भी। तो अगर प्लस माइनस 20% लिख देता तो इसका मतलब हुआ कि जो फोर्थ रिंग है ही नहीं उसमें, उसमें सिर्फ 3 ही रिंग है। तो रेड, वायलेट, ऑरेंज, इस वैल्यू से हम कलर पता कर सकते हैं, और कलर अगर हमको पता है तो फिर हम रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाल सकते हैं। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द टेबल मीन्स। तो ये टेबल को फिर से आप ध्यान रखें, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्ड एंड सिल्वर नेकलेस, तो उसमें सारे अल्फाबेट आ जाता है, इसलिए वो सेंटेंस बना है। बट एक्चुअली वो फिजिक्स नहीं है, वो सिर्फ याद करने का, सीक्वेंस याद करने का। एक चीज और कंफ्यूज हो गए, वो ध्यान में रखना कि इस जितने सेंटेंस उसमें 3 बार बी आया है, 3 बार बी है, ये ध्यान में रखना। बी बी पहला तो शुरू में ही 2 है, और एक और बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन का भी बी है। तो 3 बी आप ध्यान रखो, तो 3 बी में कंफ्यूज नहीं करना। सबसे पहले डीप कलर खोजना, तो डीप कलर होगा ब्लैक, उसके बाद उससे हल्का डीप तो होगा ब्राउन, और तीसरा में उससे भी हल्का तो वो हो जाएगा ब्लू। तो ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, ये सीक्वेंस बनाना। बात समझ में आया? तो इसको ध्यान में रखना आप, ये सिर्फ याद करने का तरीका है। तो थैंक यू फॉर ये कार्बन कलर कोडिंग। एक छोटा सा टॉपिक हम आज ही के दिन खत्म कर दें, वो है तुमको लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ, वो इसी के साथ खत्म कर देते हैं। Okay, I'll take some time to rub this, clean this board because lot of things are being written. तो ओम्स लॉ के बारे में तो आप सभी को पता ही है कि at constant temperature current passes through a conductor is directly proportional to its potential difference. The current is directly proportional to potential difference. So this is what Ohm's law, but its limitation. So first you write on limitation of Ohm's law. Limitation of Ohm's law. Ohm's law. Okay. Now you look at limitation of Ohm's law का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ओम्स लॉ जो है इट इज नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, नॉट ए यूनिवर्सल लॉ, नॉट ए यूनिवर्सल लॉ। इसका मतलब है कि ओम्स लॉ जो है वो सब जगह लागू नहीं होता है। तो अब कहाँ कहाँ ये लागू होता है, कहाँ कहाँ नहीं लागू होता है, वो ध्यान में रखें। एक है ओमिक कंडक्टर, एक तरह का होता है नॉन ओमिक कंडक्टर। तो नॉन ओमिक कंडक्टर मतलब हुआ द कंडक्टर व्हिच डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है, द कंडक्टर व्हिच डज नॉट ओबे
Ohm's law. That is called non-ohmic. Non-ohmic conductor. Non-ohmic conductor. So by name it is clear here. The conductor which does not obey Ohm's law is called non-ohmic. अब देखो ओम्स लॉ सही है कि नहीं, इसको हम ग्राफ से पता करते हैं। तो जैसे मान लो कि आपके पास एक वी आई ग्राफ है, तो यू कैन फाइंड ओम्स लॉ वेरी इजीली। इसको हम ऐसे ड्रॉ करें, दिस इज योर वी आई ग्राफ एंड इट इज ए स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। स्ट्रेट लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, इस प्रूव्स ओम्स लॉ। अगर वी आई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और ओरिजिन से शुरू हुआ तो दो ही बात, स्ट्रेट लाइन वी आई ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन हो, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन, starts from origin, it proves Ohm's law actually, ठीक है। तो अब आप ध्यान दो कि वी आई ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है और ये ओरिजिन से शुरू है, तो आप समझ लेना कि ये जो है ओम्स लॉ को प्रूव कर देता, मतलब ओम्स लॉ सही है। और जिसमें ये ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा आया तो समझ लेना कि वो ओम्स लॉ प्रूव नहीं करता, ठीक है, यानी वो गलत है, उसके लिए ओम्स लॉ लागू नहीं हो रहा है। अब एक और चीज ध्यान रखें, अगर आपसे पूछे कि वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देगा, व्हाट इज योर आंसर? द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ गिव्स क्या? रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको एग्जाम में भाई वी आई ग्राफ में देख करके आई वी ग्राफ दे देगा, तो फिर आप क्या करोगे? तो आई वी ग्राफ का स्लोप क्या देगा? तो उल्टा, रेजिस्टेंस का उल्टा क्या होता है ना, अरे जैसे स्लोप कहाँ निकालो, किसी पॉइंट पर निकालो, यहाँ पे स्लोप निकालो। तो ये जो एंगल है एक्चुअली स्लोप यही डिसाइड करता है। तो स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, इसको ये वैल्यू मान लो ए बी सी, तो स्लोप जो है इस ग्राफ का वो हम निकालते हैं tan थीटा से, और tan थीटा पर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई सी बी, नहीं बी सी, ए बी बाई बी सी। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, ए बी बाई बी सी। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, तो डेल्टा वी बाई डेल्टा आई क्या देगा आपको? This is the resistance of the conductor. Since this is a straight line graph, the slope at every point is same, तो resistance is same throughout, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप देखो इसके लिमिटेशन क्या है, वो आप ध्यान करें। अच्छा एक चीज, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, आप सोच के हमें इसका तुरंत में आंसर करें। मान लो कि आपके पास एक ग्राफ दे दिया एंड यू काइंडली चेक इट, ये आई वी ग्राफ, ये ग्राफ है 1, ये ग्राफ है 2, दिस इज 1, दिस इज 2, ओके। इसमें एक ग्राफ है सीरीज कॉम्बिनेशन का, दो रेजिस्टर के सीरीज कॉम्बिनेशन का, और एक ग्राफ जो है दो रेजिस्टर को पैरेलल जोड़ करके हम एक्सपेरिमेंट किया और उसका ग्राफ प्लॉट किया। तो दो रेजिस्टर को सीरीज में जोड़े और दो रेजिस्टर को पैरेलल जोड़े, ठीक है, तो हमें दो ग्राफ आया आई वी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें कौन सा ग्राफ जो है वो सीरीज का कॉम्बिनेशन है, ओके, दैट यू ट्राई टू फाइंड एंड थिंक, कौन सा ग्राफ सीरीज का कॉम्बिनेशन। तो बेसिक आप जाने, सीरीज कॉम्बिनेशन में सबको पता है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ता है, करेक्ट। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टेंस क्या होगा? एंड यू नो वेरी वेल द कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब इसका स्लोप जो है वो हमको देगा क्या? तो इसका आई वी ग्राफ है तो स्लोप देगा आपको कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस कम किसका है? ग्राफ 2 का। तो इसका मतलब इस केस में रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जब कंडक्टेंस कम होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है।
तो since the slope of graph 2 is less, so its conductance is less, correct? Hence resistance is more. So this will be your series combination. तो स्टेप क्या लिखेंगे? पहला स्टेप ये लिखना, the slope of graph 2 is less, the conductance is less. उसका मतलब ये हुआ slope of graph 2 is less, ऐसे कर देना, घटा, कंडक्टेंस कंडक्टेंस क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस भी घट जाएगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा बताओ? तो रेजिस्टेंस जो है वो आपका बढ़ जाएगा, ऊपर कर दी वर्टिकल है। और रेजिस्टेंस बढ़ता किस में है? किस में बढ़ता है? तो रेजिस्टेंस का बढ़ना, इसका मतलब है रेजिस्टेंस ज्यादा। रेजिस्टेंस ज्यादा ग्राफ 2 का है, तो ग्राफ 2 विल बी योर सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये ध्यान में रखना, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। दूसरा एक और क्वेश्चन है जिसको आप समझे यहां पर, एंड देन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मान लो कि आपके पास एक ही कंडक्टर का दो टेम्परेचर पर IV ग्राफ दिया हुआ। IV ग्राफ, फिर से एक ग्राफ ये, एक ग्राफ ये, दिस इज 1, दिस इज 2। तो क्वेश्चन ये है कि कौन सा टेम्परेचर हायर है? दिस इज T1 एंड दिस वन इज T2। विच टेम्परेचर? सिंगल कंडक्टर है जिसका हम IV ग्राफ प्लॉट किए, और प्लॉट करने के बाद तो ये जो ग्राफ है वो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे प्लॉटेड है। तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा है। तो अब फिर याद करो पिछला लेक्चर कि हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, कंडक्टर का हाई टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा। ठीक, कंडक्टेंस अगर कम होगा तो स्लोप जो है IV ग्राफ का वो कम होगा। ठीक है, और स्लोप कम किसका है? तो ग्राफ 1 का है। इसका मतलब है ग्राफ 1 का जो है वो हायर टेम्परेचर। तो इसको आप सीक्वेंस में लिखें। पहला आपसे पूछ रहा है कि कौन हाई टेम्परेचर है, तो पहला लिखें फॉर हाई टेम्परेचर, रेजिस्टेंस मोर, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कंडक्टेंस बताएं, कंडक्टेंस क्या होगा? घट जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कंडक्टेंस कम होगा। कंडक्टेंस कम होगा, इसका स्लोप तो कंडक्टेंस ही देता है ना, तो स्लोप इज लेस, वो भी घट गया। तो कम स्लोप किसका है? तो इसमें ग्राफ 1 का स्लोप जो है वो कम है। तो इसका मतलब हुआ कि ग्राफ 1 का टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, कंडक्टेंस कम हुआ तो रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ तो टेम्परेचर भी ज्यादा हुआ। सो एनीवे यू कैन गेट द आंसर, कैसे भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट ओनली थिंग दैट यू अंडरस्टैंड वेल। ठीक है, अब चलो हम 3 और ग्राफ प्लॉट करते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड द लिमिटेशंस एक्चुअली। पहला है इसका कि अगर आप टेम्परेचर वेरी करेंगे तो ओम्स लॉ ओबे नहीं होता। फॉर वेरिएबल टेम्परेचर ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। तो कंडक्टर का हम VI ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये VI ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, सॉरी इट डज नॉट लुक स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ ऐसे हो गया, ये ऐसे नहीं करो, इसका और बढ़ाओ, ये ऐसे हो गया। स्लोप बढ़ेगा ना तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ओके, ये ऐसे ग्राफ हो गया। अब देखो एक ही कंडक्टर है, जब ज्यादा करंट आप फ्लो कराओगे
तो ग्राफ टेढ़ा हो गया। तो जब तक ये सीधा था तब तक ये ओमिक कंडक्टर हुआ, ओमिक कंडक्टर। और ज्यों ही ये टेढ़ा हो गया तो यहां से ओम्स लॉ ओबे नहीं होगा, तो ये पोर्शन जो है नॉन ओमिक बिहेवियर हो गया इसका। मतलब एक ही कंडक्टर है, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो वो नॉन ओमिक हो सकता है। तो ये हाई करंट के लिए फिर ओम्स लॉ आपको वैलिड नहीं होता। फॉर हाई वैल्यू ऑफ करंट तो ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड, क्योंकि हाई वैल्यू ऑफ करंट में क्या होता है, हीट का वैल्यू ज़्यादा हो जाता है, और हीट ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस का भी जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाएगा। ओके, देन योर एक ग्राफ करते हैं जंक्शन डायोड का वीआई ग्राफ। एक्चुअली जंक्शन डायोड का आईवी ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ध्यान दें। देखो ग्राफ वीआई हो या ग्राफ आईवी हो, स्ट्रेट लाइन जब आएगा तो ओम्स लॉ ओबे हो गया। अब आप देखो और जंक्शन डायोड, इसको आप डिटेल में पढ़ोगे, लास्ट यूनिट है जंक्शन डायोड। इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं आईवी, आईवी ग्राफ। ये ग्राफ ऐसे होता है और ये ग्राफ ऐसे होता है। अगर वोल्टेज आप रिवर्स करोगे तो ये ग्राफ आपको एक खास वैल्यू के बाद आपके वोल्टेज बढ़ना बंद हो जाएगा और करंट का जो ग्रो है वह इनफाइनाइट हो जाता है इस पॉइंट पर। तो इसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, सॉरी। तो ये भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। ओम्स लॉ is not obeyed. Okay, Ohm's law is not obeyed. क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहीं आपको दिख ही नहीं रहा। तो जंक्शन डायोड में ओम्स लॉ लागू नहीं होता। दिस इज लिमिटेशन, अनदर लिमिटेशन। हाई वैल्यू ऑफ करंट फ्लो कराएंगे तो ओम्स लॉ फेल हो जाएगा, क्योंकि हीट ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाएगा, तो ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड। सेकेंड में क्या है ना, जंक्शन डायोड में नहीं होता। थर्ड आप देखें, एक और एग्जाम्पल करते हैं, वो है आपके गैलियम आर्सेनाइड का। इसको आप देखो गौर से, गैलियम आर्सेनाइड का आईवी ग्राफ। ओके, गैलियम आर्सेनाइड GaAs, इसका ग्राफ आप देखो, इसका तो ग्राफ और अजीब है, ये इस तरह का। ओके ओके, so what is happening, your slope is getting, finally slope here at this peak becomes 0, but after that what you are finding, इसका स्लोप जो है वो निगेटिव हो गया इस पोर्शन के बाद, स्लोप इज निगेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय निगेटिव स्लोप? एक बार क्वेश्चन पूछे हुआ कि क्या निगेटिव रेजिस्टेंस हो सकता है, तो आपने बोला हो सकता है। एग्जाम्पल कौन है? गैलियम आर्सेनाइड। फॉर ए ह्यूज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड, इस ग्राफ, यहाँ पे ओम्स लॉ का तो सवाल ही नहीं होता है, स्ट्रेट लाइन तो ग्राफ है भी नहीं, तो ये ध्यान में आप रखना, ठीक है। तो इसको हम इस ग्राफ को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला पार्ट, ये जो ग्राफ है इधर में रेजिस्टेंस पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहाँ पे जाके 0, फिर यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, नेगेटिव हो गया। फॉलोइंग, तो नेगेटिव रेजिस्टेंस हो सकता है, तो योर आंसर इज यस। किस में? तो गैलियम आर्सेनाइड में। ओके, after a certain value of potential difference, its slope becomes negative. So this proves you that its resistance will be negative. So thank you for this lecture. For next class, I will tell you about potential difference and the combination of resistance. If it is possible, then combination of cells also. Okay, thank you very much.